آپ کو پتہ ہے جب بھی دنیا میں خوف کا عالم ہوتا ہے کسی نبی کا انکار کیا ہوتا ہے انہوں نے. میں اب یہ بات کر رہا ہوں کہ دنیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مسیح دونوں کا انکار کیا ہے, لیکن وہ ایک علیحدہ موضوع میں اس طرف نہیں جاتا. اب اس آیت میں سورہ اعراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اور بنی نوع انسان سے خطاب ہے. کیا ہم بنی نوع انسان نہیں رہیں گے تا قیامت؟ یا بنی آمد اما یاتین, اے بنی آپ کی طرف رسول. میں نے عربی میں بتا رہے ہیں محترم, ابھی آپ یہ بتا رہے ہیں, نہیں یہ سنیں نا, ابھی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دور ختم ہو جائے گا, نبی کی نبوت جو ہے, نبی کی شریعت جب منسوخ ہو جائے گی, ختم ہو جائے گا. نہیں منسوخ نہیں ہوگی, وہ اینڈ تک چلی جائے گی. وہ تو آپ کے اور اس میں ہمارا کوئی عقائد میں کوئی فرق ہی نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہفتم ہزار ہے, وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے. وہ یہ ہے کہ آخری دور ہے, آخری جی 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 یہ آخری شریعت آ گئی. جی 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 ایک منٹ مجھے تھوڑا سا بات کرنے دے پھر. وہ یہ ہے کہ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا بعد چلتا رہا, ٹھیک ہے نا. موسیٰ کا بعد دیکھیں اور رسول اللہ, باقی انبیاء کو چھوڑ دیں. ابراہیم علیہ السلام یا نوح کا بعد ہے, نوح کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام آئے تھے, اور وہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ نوح کے شیعہ تھے, نوح کے ماننے والے تھے. وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے, اس کی طرف میں نہیں جاتا. آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیاوی بعد ہوتا ہے, ختم ہو جاتے لوگ, لیکن خدا کا جب نبی آیا آخری مکمل شریعت آ گئی. پہلے شریعتیں مکمل نہیں, حالانکہ یہود کہتے ہیں کہ ہماری شریعت مکمل ہے, لیکن وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ہمارے اختلاف ان سے ہے, آپ سے نہیں. ہم کہتے ہیں بالکل یہ مکمل دین ہے, اکملت لکم دین ہو گیا, یہ دین چلتا رہے گا قیامت میں, اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوگی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی 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 ذرا دیکھیں, جب بات ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی تو جتنی بھی بات آپ کریں گے وہ اچھی تو ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں بات سمجھ میں آئے. اگر اجازت دیں تو میں تھوڑی سی بات کر لوں. نہیں مجھے دیکھیں, میں تھوڑا سا میں نے ابھی نہیں میری بات آپ لکھ لیں. دیکھیں آپ سوال لکھ لیں, میں ایک منٹ آپ کو ایک ابہام آپ کا نہیں بھولیں گے. نہیں محترم جی 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 ٹھیک ہے. جی 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 میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے, میں نے آپ سے یہ سوال کیا لا نبی بعدی, جی اس کی وضاحت کیجیے. آپ نے بہت اچھی وضاحت کی, مجھے پسند آیا. آپ نے کہا کہ لا نبی بعدی, بعدی کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد, یعنی میری شریعت شروع ہے, شریعت آگئی شروع ہے, اب اس شریعت کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, یعنی اس آخری شریعت میں شریعت. آئیں گے. آپ نے یہی کہا. جی جی بالکل. لیکن اب آپ پیش کر رہے ہیں کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم, یہ پیش کر رہے ہیں. تو آپ پوچھ رہے ہیں کیا ہم بنی آدم نہیں ہیں؟ ہم بنی آدم ہیں, یہ چل رہی ہے, لیکن یہ شریعت جب ختم ہو جائے گی وہ بھی تو بنی آدم ہوں گے, وہاں کیوں نہیں آئے گا نبی؟ اوہو, یہ دنیا 1000 سال کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. میں تو یہی آپ کو سمجھا رہا ہوں, مجھے تھوڑا سا بات کرنے دے. میں دو آیتیں اور قرآن نہیں جی میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 یا 22 ہے. 21 اس وقت ہوتی ہے جب آپ بسم اللہ کو آیت پڑھتے ہیں, نہیں پڑھتے. اس میں آیا کہ ہم نے لکھ رکھا ہے کہ ہم اور ہمارے رسول غالب آئیں گے. جی میں آپ کو ایک بات بتانا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے لکھا ہے ہم اور ہمارے رسول غالب آئیں گے. اب پرانے تمام رسول غالب آ چکے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. مستقبل کی باتیں ہو رہی, مستقبل کا صیغہ استعمال. اب اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور آپ کو یہ آیتیں بھول جائیں تو یہ سورہ مجادلہ کی مرسلات کی آیت نمبر 12 ہے, جس میں ہے کہ ہم رسولوں کو اپنے وقت پر لائیں گے. بھئی رسول تو آ چکے ہیں سارے, رسول اللہ بھی آ چکے. یہ سورہ مرسلات کون سے رسولوں کی بات کر رہی ہے؟ ان رسولوں کی بات کر رہی ہے جنہوں نے بعد میں آنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی میرے, اور وہ میرے پاس وہ کئی حدیث موجود ہے کہ میرے
اور مہدی کے درمیان کوئی نبی نہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لا مہدی الا عیسیٰ، مہدی اور عیسیٰ ایک ہے. ہاں اور پھر انہوں نے وہاں پر ایک منٹ میری تھوڑی سی مجھے بات اس میں یہ بات کی ہے. میں آپ کے بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن نہیں آپ زیادہ جب نہیں حوالے ہوں گے تو نہیں میں بھول آپ جاؤں کو گا، مجھ پہ تھوڑا میں سا آپ نہیں آپ نہیں بھولیں گے. میں آپ کو بار بار وہ کروں گا، آپ سے سوال کرے. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا مہدی طاہر مرزا صاحب نے اس آیت اس حدیث کو ضعیف کہا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ قابل اعتبار نہیں ہے. چلے نہیں میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. نہیں میں دیکھیں ان کی پیارے بھائی آپ مرزا نہیں صاحب پلیز کی پلیز تعلیم کے خلاف نہیں جا رہے ہیں. میں آپ سے آپ کا کانفلکٹ پیدا کرتے ہیں، وہ پیدا کرتے ہیں. چھوڑ دیں اس کو، میری بات. نہیں اچھا تو آپ مرزا صاحب کی تعلیم کے خلاف بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں کے خلاف کروں یا حق میں کروں؟ آپ پلیز خاموش ہو جائیں. آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین علماء کو ان سے کفار مکہ سے وہ دی ہے کہ انہوں نے کہا انہیں آپ کو کہا ہے آپ کو نہیں پلیز 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 آپ خاموش ہو جائیں. پلیز ان کو خاموش کر دیں. جی آپ ان کو میوٹ کر دیں. جی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ چلے نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مجھے سمجھیں گے جی. آپ پیر صاحب علماء کی توہین کر رہے ہیں تو دیکھیں بری بات ہے. وہ یہ ہے نہیں یہ بات پھر مجھے اجازت دے دیں. میں آخری آپ کو حدیث سنا کے وہ یہ ہے پورا دن نہیں، مجھے 10 منٹ چاہیے. وہ یہ ہے پورا دن چاہیے نہیں یہ خاموش. اب مجھے بتائیں کہ آپ ان کو کہتے کہ میں خاموش نہیں کرتا بولے جا رہے، تو مجھے پھر کیوں بلایا آپ نے؟ مجھ سے وہ یہ ہے نہیں میں آپ کو 2 حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. لا مہدی الا عیسیٰ للمہدی، لیکن اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 دفعہ ہو نبی. ایک نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور خاص کر یہ جو ملک صاحب ہے ان کو ہو نبی. وہ اس لیے کہا کہ پرانے ان کا تو عقیدہ کہ نہیں، جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ پرانے عیسیٰ نے آنا ہے تو ان کو کہا میں بتاتا ہوں کہ پرانا تو نبی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اصرار کیا اور 4 دفعہ کہا کہ ہو نبی ہونی، تاکہ مسلمانوں کو یہ ابہام نہ رہے. تو ایک طرف نبوت بند کی ہے، دوسری طرف آسمان میں بٹھایا وہ نبی بھی آئے گا، اور آنے والے مہدی کا ڈیفرنٹ حلیہ بتایا ہے، اور ہو نبی. جب رسول کی باتیں نہیں مانتے تو میری کیا مانیں گے؟ اصل میں نے گولی کھائی ہے. میں اس وقت سونے لگتا ہوں، ٹائم ہو گیا. میں صرف آپ کو سلام کرنے آیا تھا. اب 2:53 ہو گئے، 3 بجے. آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ. اچھا ایک آپ کا نمبر آپ نے مجھے دیا تھا تو وہ مجھ سے کہیں پتہ نہیں گر گیا ہے، تو اگر نمبر بتا دیں میں اس کو جو ہے وہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک کنواں جو ہے کوئی غریب علاقہ ہے، وہاں ایک کنواں کھود رہے ہیں. میں نے سوچا تھا کہ آپ ماشاءاللہ بہت سارے جو ہے مدد کی ہے، میں نے سنا ہے. میں نے سوچا ان کے لیے بھی تھوڑا سا اگر آپ مدد کیجئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے لاکھوں ڈالر اور ملینز آف روپیز دیے ہیں ترپارکر میں. ابھی میری پچھلے بات 1958 میں گئے، اسکول بنائے، کالج بنائے، یونیورسٹیاں بنائی. میں ریگولر دے رہا ہوں. تو اب میں میں پراپرٹی بیچ رہا ہوں. میں پاکستان جا رہا ہوں عید کے بعد، رمضان کے آخر میں. تو جب میں واپس آؤں گا اور میری پراپرٹی بکی، ورنہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میرے حالات میں نے وقف کیا تھا اگست. وقف تو میں ساری عمر رہا ہوں 1968 سے. تو میں 5.5 سال میں نے نوکری نہیں کی. میری تنخواہ لاکھ یا 1.5. جو پیسے بچے تھے وہ میں نے لوگوں میں تقسیم. اب یقین کریں کہ آج مجھے میرے اکاؤنٹ میں $130 تھے، اور ایک چیک آیا ریٹرن کا کوئی $300 کا، وہ میں نے جمع کیا ہے. تو میں جا رہا ہوں پاکستان. آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ اگر میری زمینیں بک گئیں تو میں آپ کو کنٹریبیوٹ کروں گا، لیکن ہمارا ادارہ جی فرمائیے. یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا ناراض نہ ہوں، میں ایک بات تھوڑا سا کڑوا ہے آپ اس کو، لیکن مجھے امید ہے برداشت کریں گے. دیکھیں ساری جائیداد آپ نے جو ہے وہ دے دی،
لیکن آپ کے نام پر یا آپ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ یہاں پر یہ کنواں کا جو مسئلہ ہے یہ زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں اس میں لگنے ہیں، کیونکہ کوئی 600-700 گھر ہوں گے تو 2-4 کنویں لگائیں گے. میرے خیال میں 10-12 لاکھ کا خرچہ ہے، زیادہ نہیں ہے. تو یہ آپ کے نام پر ہوگا، بورڈ ہوگا، سارا نہیں کچھ نہیں، ہوگا. آپ میرے لیے بہت قابل احترام ہیں. جی میں نے ایک بات کی تھی، میں اب زیادہ خاندان کی باتیں نہیں کرتا. نہیں، میں میں جانتا نے ہوں آپ قابل میں احترام. 1978 میں ایس ڈی او بنا تھا بی این ڈار میں. آپ پہلی باتیں اتنی بڑی تنخواہ. کرتے ہیں اور آپ 10 لاکھ نہیں لگا سکتے. جی 10-12 لگیں گے، 10-12 ہو سکتے آپ 12. ایسے کریں. جی ملک نہیں، ریاض وہ صاحب ایسا ہیں، نہیں، ملک وہ ریاض کریں گے ہیں، کریں گے. ریسرچ لوگ ہیں، سیگل ہے، آدم جی ہے، ٹھیک ہے نا. محترم پتہ ہے تو کیا ہے، مجھے آپ میں نے اس انکل عزت کے ساتھ آپ انکل کا بھائی ویڈیو بھی چاہیے تاکہ وہ بھی ہم وہاں پر اور تصویر کے ساتھ باقاعدہ سارا کچھ ہم وہ کریں. نہیں نہیں، انکل طاہر میرے انکل میرے طاہر میں بروڈ میرے لگاؤں گا، اور کیونکہ انکل طاہر کا ایک پرانا پیشہ ہے کہ ان کا ایک 2 لفاظ کا سوال ہو نا تو انکل کو آدھا دن چاہیے اس کا جواب دینے کا. تو جی ٹھیک ہے ہر ٹھیک ہے سوال ٹھیک پہ ہے. بس تو یہ شروع کریں گے. مسلمانوں میں ان کو چھوڑیں، نہیں یہ شروع شیعوں کے لیے کریں کچھ نہیں نہیں، نہیں برا نہ مانے، مجھے برا نہ مانے. اسکانی صاحب انکل میں انکل ان ہماری باتوں کو برا نہ مانے. آپ کی ٹوپی اور آپ کے گھوڑے رنگ پر شروع کریں گے تو پاؤں تک چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو پورا کہ دن جو ہے وہ یہ فضول باتیں کر رہا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں. نہیں نہیں. محترم، آپ بات یہ انکل آپ ہے کو جنہوں نے 1500 ایکڑ میں اسلامیہ کالج بنایا تو میرے نانا کو لوگوں نے کہا، اور علامہ مشرقی نے کہا تھا کہ صاحبزادہ صاحب کچھ اپنے بچوں کے لیے بھی چھوڑ دیں. تو ان کا جواب میں دیتا ہوں آپ کو. انہوں نے کہا اسلامیہ کالج میں جو لوگ بچے پہ سب میرے بچے ہیں. دکانیں دی میں اچھا پشاور میں چلے جائیں، کینٹ سے لے کے اسلامیہ نہیں. ہیلو پھر وہی فضول باتیں کریں، جہالت کی باتیں کرتے. مجھے نہیں اجازت دے دے اسکانی نہیں صاحب، نہیں، پھر ایک آپ سے منٹ بات. ایک خدا. منٹ ایک منٹ، نہیں نہیں آپ جی، میں نہیں، آئی میری کانٹ بات اسٹے تو مور. نہیں، میں اتنی حد تک برداشت نہیں کی. یہ دیکھو ہنس رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ Why صحیح you are نہیں نہیں boosting پلیز. up? Why you are boosting up the million and trillion and you are unable to لا pay the حول only ولا 1 قوت. million پتہ کیا GKR? جی جی پتہ کی ہے یہ ان پرابلم. کو چھوڑیے، اصل صحیح وہ نہیں آپ ہے. لوگ جانتے نہیں میں انکل کو چاہتا جیسے ہوں میں آپ جانتا اتنے ہوں. ایک عظیم شخصیت ہے، کچھ بھی ہو، لیکن آپ کے نام پر جو ہے دیکھیں یہ کام تو ہو جائے گا، ایسی بڑی بات نہیں ہے. یہ میں خود ایسے ترنت کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں. میں سوچتا ہوں یہ سارا کچھ آپ کے نام پہ ہو کم از کم، اور یہ آپ دکھا سکیں پروف کے ساتھ. جی میری یہ خواہش تھی. جی محترم طاہر صاحب، یہ باقی جو باتیں کر رہے ہیں سعید روح نہیں ہیں، تو یہ کچھ بھی کہیں، ان کی باتوں کا برا نہ مانیے. جی پیر صاحب ہم ان کو انکل کو بہت پرانے جانتے ہیں، بہت پرانے. جی جی میں کہا نا کہ مجھے بھی وہ جانتے ہیں، بہت پرانے. جی جی. نہیں بات یہ ہے ایاز صاحب، آپ لوگ جو ہے سعید روحوں میں سے نہیں ہیں، اس لیے اچھی بات آپ لوگ نہیں سنتے، نہیں مانتے. یہ اعلیٰ شخصیت ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، کافی ان کی قربانیاں ہیں، کافی ان کی جو ہے وہ معلومات ہے. آپ لوگ ان سے معلومات لیتے ہی نہیں، تو کیا کیا جائے بھائی. موت کا بھروسہ نہیں، ان جیسا آپ کو ملے گا نہیں. اصل بات یہ ہے، سمجھے، ان کے قائم مقام کوئی نہیں ملے گا آپ کو اس جماعت میں. آپ کو ان سے اختلاف ہے، مجھے بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ معلومات یہ کافی بہترین اور اچھے رکھتے ہیں. اس کا تھوڑا سا خیال کیجئے. میرا یہ کہنا تھا، آپ اس کا خیال ہی نہیں رکھ رہے. اور ان کے تمام جو ہے وہ چلے گئے محترم. یہ دیکھیں آپ لوگوں کی وجہ سے چلے گئے. چلیں آپ لوگ بات کیجئے اب. نہیں انہوں نے گولی کھائی ہے، وہ ویسے بھی سونے والے ہیں، سونا انہیں. ہاں ٹھیک ہے، سونے چلے گئے، اچھی بات ہے. جی آئیے محترم ولید صاحب. کہاں ہیں ولید صاحب؟ ولید صاحب نہیں آئے، تو ڈالی ہوئی تھی. یہ حفیظ شیخ صاحب آئے ہوئے ہیں، ان سے بات کی جائے. جی کیجئے، بات کیجئے. حفیظ صاحب، شیخ حفیظ صاحب خیریت ہے؟ جی السلام علیکم. الحمدللہ جی، اللہ کا شکر ہے. خوش رہیں، خوش رہیں. شیخ صاحب آپ سے بات کرنے کے لیے ایک اور شیخ صاحب بلائے گئے ہیں، ابو رفیع صاحب. جی آپ شیخ دونوں ابو بات رافع، کریں. شیخ ابو رافع صاحب خیریت ہے؟ الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
जी जी जी। मेरी आवाज़ आ रही? हाँ बिल्कुल साफ है भाई। अच्छा अच्छा। जी। और क्या हाल चाल? असल में भगा दिया आपने ताहिर खान साहब को? नहीं, आप लोग बात नहीं करने देते ना। आप लोग सईद रूहों में से नहीं हैं। मैं तो नीचे था ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋ ਤਰੇ ਮਤਲਬ 4-5 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। अच्छा ये ये उन्हें काम बताइए चौहान साहब ने। पोरस भाई, ये बताइए उमर अबाब साहिबा काफी दिनों से ऑनलाइन नहीं, कोई सब खैरियत है? कुछ मालूमात है? ये मुझसे सब पीर साहब ह्यूमैनिटी मुझसे की बात। पीर साहब मुझसे पूछ लेना जी। जी बताइए। वो थोड़ा बिजी हैं, आज उन्होंने ब्रॉड लगानी थी, लेकिन अभी भी कुछ एक काम था, तो इंशाल्लाह कल से आएंगे वो। ठीक, बहुत शुक्रिया ये सब ह्यूमैनिटी भी गायब हुआ है। जी। ह्यूमैनिटी भी गायब हुआ है ह्यूमैनिटी? ह्यूमैनिटी कौन? जी। ओमिनिटी वो छोटा सा लड़का नहीं है जो वो ब्रॉड भी लगाता है? नहीं मालूम मुझे उसकी बात कर। जिसकी ब्लड पे आपकी इज्जत होती है बहुत ज्यादा। हाँ वो शिया लड़का। हाँ जी उसकी जी बात। जी। हाँ 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 ठीक है। आजकल उमर अबाब भी नजर नहीं आ रही, क्या हो गया उनको? वही मैं आएंगे पूछ रहा आएंगे वो। था। वो खैरियत से अच्छा। हैं, कुछ मसरूफ हैं बता रहे हैं। शेख साहब आप नंबर ले लेना उनका। असकानी साहब जरा ये वलीद भाई को ऊपर लें, ये इनसे थोड़ा और हाल इनको मैं बुला रहा हूँ, आ ही नहीं रहे, मैं क्या करूँ? आज आज बहुत शुगल हुआ है इनके साथ। आ ही नहीं रहे। इन्होंने जाके सोया में छेड़ लिया और नादर लोगों की बात पे। वली साहब कॉल डालिए, आपको ले लेते हैं, लेकिन नहीं आ रहे। वली साहब घर पे हूँ। अच्छा घर पे हैं, घर पे होते तो बात नहीं करते, जब घर पे होते हैं बात नहीं करते, बाहर बात करते हैं। अच्छा जी शेख साहब आप बताइए, ये क्या नाम है अपना, हम जो बात कर रहे थे ताहिर साहब से, बादी का मतलब ये है कि मेरी शरीयत जब तक है उसमें तो नबी आएंगे, लेकिन ये शरीयत के बाद यानी ये शरीयत जो ख़त्म हो जाएगी तो तब नबी नहीं आएगा, ये बता रहे थे मोहतरम ताहिर साहब। आप क्या कहेंगे? बस मैं यही कहूँगा, अम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितनति व इब्तिग़ाअ तअवीलिह। और उसके बाद ये है ना आयत कुरान की कि अल्लाह ताला की आयत में इल्हाद करना। व अम्मल्लज़ीन फ़ी ना, क्या किस तरह है आयत कि जो अल्लाह ताला की आयत में इल्हाद करते हैं। जी जी। तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया अल्लाह ताला की आयत में इल्हाद क्या है, तो उनको बताया कि हम अपनी मनमानी तअवील करना जो कुरान और सुन्नत के मुखालिफ हो। तो यही है इनकी, बस इल्हाद कुफ्र है ये इनका जो ये बक रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। इन्नल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी आयातिना ला यख़फ़ूना अलैना। जी जी। जो इल्हाद करते हैं अल्लाह ताला की आयत में, तो हमसे वो छुपे ढके नहीं है। तो इब्न अब्बास से पूछा कि इल्हाद क्या है आयत में, तो कहा गलत तअवील करना आयत की। इसी तरह मिर्ज़ा ने भी यही कि अपने ऊपर फिट किया आयत के कुरानिया को, तो ये भी वही कर रहे हैं तमाशा। वह इस्मु अहमद का लेकर, मैं तो करता ही नहीं बहस इनसे, भाई इस्मु अहमद है, मैं इनके इस तरह जवाब देता हूँ, कहते हैं मुसलमान की तारीफ़ करो। मैं कहता हूँ मुसलमान वो है जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जैसे कज़ाब दज्जाल पे लानत भेजे, वो है मुसलमान। अब वो कादियानी हमसे पूछे मुसलमान की तारीफ़, अब तो हमारे पास तो तारीफ़ यही होगी ना। अबू रफ़ी साहब, मिर्ज़ा साहब ने भी तो मुसलमान की तारीफ की हुई है जनाब। की होगी, वो अपने तरीके से की होगी। नहीं 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 जनाब, क्या बात करते हैं भाई। मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि मुसलमान की तारीफ ये की है कि जो कलमा तैयबा पे ईमान रखता हो, ठीक है, किबला रुख हो के नमाज पढ़ता हो, मदीए नबूवत न हो और हर किस्म के मदीए नबूवत को दायरा इस्लाम से खारिज समझता हो, वो मुसलमान है। हवाला मौजूद है, इस्त्री किया हुआ भेज दूँ? हाँ भेज दे मुझे, ये काम का है हवाला।
व्हाट्सएप पे भेज दूँ? अभी भेजता हूँ, अभी राइट नाउ भेजता हूँ। और ठीक है, मेहरबानी। मेरी बात सुने, ये जो दूसरी हदीस का हवाला देते हैं ना कि जिसने क़िबला रुख होकर नमाज पढ़ी, हाँ, जिसने और ये उस हदीस पे भी पूरा नहीं उतरते, उसमें भी ये नहीं उतरते। वजह मैं आपको बताता हूँ, मिर्ज़ा साहब मुंह में पान रख के नमाज पढ़ते थे या नहीं? हाँ, तो रसूल पाक ने कभी पान रख के मुंह में नमाज पढ़ा या किसी सहाबी ने पढ़ी? कहाँ है वो हदीस, वो रिवायत जिसमें पान रख के नमाज पढ़ रहे पीर साहब आपको भेजे हुए सारे ने, रिवायत है वो। भेजे आप हुए हैं, लेकिन वो याद है जिसमें फारसी नज़म भी पढ़ी थी उन्होंने मगरब की तीसरी रकात में? सीरत महदी में है मेरा ख्याल। नहीं, वो सुने ना, मेहदी सुने। वाली बात को नहीं मानते ना, ये तो ऑथेंटिक नहीं है ना। मानते हैं ना, मेरी बात सुने। वो चौहान नहीं मानता ना, तारिक चौहान नहीं मानता। देखे मेरी बात सब सुन, नहीं मानते भाई, सब नहीं, अच्छा मेरी बात सुने, अच्छा मेरी बात सुने। मिर्जा साहब ने तो ये भी कहा हुआ है ना कि मुझे अल्लाह ने ऐलान करके बताया है कि जिसको ये मेरी ह्यूमैनिटी आ गया है ना भाई, ये देखो ह्यूमैनिटी आ गया। हाँ सुने ना, मिर्जा साहब ने तो ये भी फरमाया हुआ है ना कि जिसको अल्लाह ने मुझे अलाम करके बताया है कि जिसको मेरी दावत पहुंची उसने मुझे कबूल नहीं किया, वो मुसलमान नहीं, तो मैं उनको तो कबूल नहीं करता, तो मैं मुसलमान नहीं हूँ। अब वो मेरा ज़बिया खा सकते हैं? पीर साहब ये बताएं ज़रा। नहीं, बात ये है, वो ये कहते हैं कि आपको अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने, ये एक बात ये है कि वो इस तरह की बात करते हैं कि अल्लाह ने कहा कि मुसलमान नहीं है। नहीं सुने ना, देखें हम नहीं कह सकते, वो कहते हैं हम नहीं कह सकते, अल्लाह ने कहा। नहीं, ऐलाम किया ना अल्लाह ने, देखें इल्हाम किया, लेकिन एक अल्लाह साइड ने पे वो किया ना। कहते हैं, एक साइड पे वो कहते हैं कि जिसने कलमा पढ़ा, किबला रुख होकर नमाज पढ़ी और हमारा ज़बिया खाया, वो मुसलमान है, उसको आप काफिर नहीं कह सकते। और दूसरी साइड पे हम ये सारे काम करते हैं, हमें कहते हैं आप काफिर हैं। हाँ, जब अल्लाह ने बता दिया तो फिर कहेगा ना। लेकिन मेरी बात सुनिए ना, फिर वो हमारा ज़बिया क्यों खाते हैं? नहीं कहता ना, आपको ज़बिया नहीं कहता। मिर्जा जी ने कब कहा है? नहीं, हमारा ये मुसलमानों का ज़बिया खाते हैं ना, ये कौन? ये अपना अहमदी, वो बिस्मिल्लाह पढ़ के काओ कहते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के। वो तो वैसे भी वो खाते हैं, वो तो उनको तो वो तो मैकडोनल्ड भी खाते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो उसमें क्या है? हाँ, वो खुद हलाल बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, खुद ही हलाल हो जाता है उनके लिए। अब देखें ना, ये फिर देखें पीर साहब, ये उस हदीस पे मैं जवाब दे देता हूँ। ये पान वाली बात कर रहे हैं ना, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। उनके दांत में दर्द था, मैं अहमदी हूँ अल्लाह के फजल से, और ये बातें बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये बातें कह रहे हैं मुसलमान ये कहा होगा, बिल्कुल गलत बातें कर रहे हैं। इनको अल्लाह ताला से डर नहीं लगता जी। इफ्तिखार साहब, ये सईद रूह नहीं है इसलिए। हाँ, ये वो तो जाहिर है। उनके दांत में दर्द था, तो किसी ने कहा कि अगर पान रख लेना तो उससे जो है वो आराम आ जाता है, तो वो उन्होंने रख लिया। तो ये बात हुई थी इसमें। पान इन्होंने पता क्या कहा? इन्होंने कहा वो पान खा के नमाज पढ़ते थे। देखो ये है, ये लानती लोग, लानती लोग। एक दफा रख, एक दफा दर्द रख, वो दर्द की दुआ है, दर्द की दुआ है, वो क्या है उसमें? अच्छा, तो आप करते हैं उस पर सुन्नत पे अमल? मैं अगर मेरे दर्दों में रख लूंगा, कोई बात नहीं, क्या मसला है? नमाज भी पढ़ लेंगे, क्यों नहीं? इसमें क्या कोई हरज है? दवाई रखा हुआ है ना, कोई हरज है? हाँ, दवाई है, दवाई नहीं आप लेते हैं? आपको दर्द आप कह रहे हैं पान रख के नमाज पढ़ता नहीं, तो दुनिया की दवाएं नहीं लेते आप? रखते नहीं है, दुनिया की दवाएं नहीं लेते जो अच्छा शेख साहब, यार एक मिनट, शेख झूठ साहब ने बोलते बड़ी हो, अच्छी खुदा मालूमात का खौफ करो, कोई अल्लाह से शेख डरते आप लोग। शेख साहब अल्फाज थोड़ा सख्त ना बोलना, अल्लाह से डरो यार, अल्लाह से। शेख साहब, आप मगरब की नमाज में फारसी की नज़म पढ़ लेंगे? किसने पढ़ी है नमाज फारसी की? मिर्जा साहब ने बताया। झूठ बोलो। मैं अभी हवाला लगाता हूँ जनाब। हवाला लगाओ यानी मगरिब की नमाज में, एक झूठ बोल, मगरिब की नमाज में मिर्जा जी ने फारसी की नज़म पढ़ी है, आप ये कहते हैं? जी झूठ बोलो, लानती झूठ बोल रहे हैं। नहीं, लानती वालती मत किए, दिखा रहे अभी और डालने दो खार। शेख साहब अपने अल्फाज का चुनाव अच्छा करें तो आपसे भी अच्छे तरीके से बात होगी। फिर झूठ आप एक बंदे पे झूठ बोल रहे हैं और आप सारा दिन यही काम करते हैं। आपको और कोई दुनिया में कोई काम नहीं? अच्छा इफ्तिखार भाई, प्यारे भाई, यही काम करते हैं हम लोग। अच्छा इफ्तिखार भाई, सईद रूह नहीं है ना, सईद रूह नहीं। अच्छा इफ्तिखार साहब, आप एक मिनट मैं बताता हूँ, आप अपना हवाला निकाल लीजिए, मुझे दे दीजिए। नहीं, मेरे पास रात के 2 बजे मैंने हवाला कहाँ से निकालना है? मैं कहाँ से निकालूं? ये है ही नहीं है, झूठ बोलते हैं। कोई जुबानी बात ठीक नहीं है, जुबानी बात। मैं अस्कानी साहब मैं भेजता हूँ, और देखें इफ्तिखार साहब भेजे, बताए ना कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है, बताए।
प्यारे भाई एक मिनट सुने तो सही ना, देखें आपने हम पे लानत डाल दी, ठीक हो गया। झूठे पे लाती है, झूठे पे। अच्छा सुने ना, अब सुने, और अगर ये हम हवाला पेश आप भी कर कह दे, आप भी कह दे झूठे पर अल्लाह ताला की लानत। बिल्कुल झूठे पे अल्लाह ताला की लानत। हाँ अब चलो मेरी बस आप ये ठीक, बात बस बताएं। ठीक है, बस आप सुनिए सुनिए, अगर हम ये हवाला दे देते हैं बात साबित हो जाती बताओ ना कहाँ पे है, बताओ। भाई सुने तो सही ना, अभी देते हैं, अगर साबित हो गया हाँ, तो तो दो ना फिर फिर। लानत जाएगी, फिर लानत आप पे वापस जाएगी। झूठे पे लानत है, मैं कह रहा हूँ। नहीं, अगर साबित हो जाए कि मिर्जा साहब ने अगर पढ़ी है, नमाज के अंदर पढ़ते, नमाज पढ़ते हुए हाँ फारसी की नज़म बिल्कुल नमाज पढ़ते हुए जमात करा रहे थे और उन्होंने जो है तो फारसी की नज़म पढ़ी है। आप लोगों का दिमाग खराब है, कोई खुदा का भाई खौफ मैं अभी करो। पेश करता हूँ ना, मैं आप अगर ना बताओ 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 आप पहले ये देखें मेरी बात, बताओ तो सही ना, बताओ तो सही। भाई आप देखें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा आराम से करें। हम अच्छा आपको बताओ ना, आराम से क्या बात करी जा रहे हो, भाई बताते क्या- हो नहीं। देखें प्लीज नहीं नहीं, पहले बताओ। नहीं मैं नहीं, बता रहा हूँ ना, नहीं बताओ अभी मैं बताओ हवाला क्या है? लगाता हूँ, और बताओ बताओ। अगर ये बात नहीं नहीं, बताओ बताओ बताओ। अस्कानी साहब आप इनसे पूछ लें, देखें बताओ, इन्होंने बताओ। लानत डाली, हमने इनको कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। बताओ बताओ बताओ, झूठे पे लानत अगर करनी हम नहीं ये कहता। बात सच्ची साबित कर लानत है झूठे पे, नहीं, लानत है। अगर सच्ची उसको कहते झूठ बोल रहे हो, उसको कहते झूठ बोल रहे हो कि उन्होंने कहा मुसलमान की तारीफ ये है झूठ बोल। ये तो आज वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान मैं कौन ये भी है? लगा देता हूँ दोनों मुसलमान की तारीफ अल्लाह अस्कानी आज साहब, वसल्लम मैं ने आपको फरमाई। भेजता हूँ प्लीज, अस्कानी साहब प्लीज, बस एक वो मानते हैं इस्लाम की तारीफ। इफ्तिखार साहब, ये बजाय कि आप कहीं वो झूठ बोल रहे हैं और वो कहीं आप झूठ बोल रहे हैं, वो स्कैन देखेंगे ना भाई। देखिए झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए मेरे भाई, हज़रत सल्लम ने मुसलमान की तारीफ की है, हम वही तारीफ मानते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वो अपनी तारीफ में निकाल के डाल रहे हैं। ये देखो ऐसे ना करें, खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरे। वो आपने किसी और से क्या डरना है? आप सारा दिन आप ये लगे हुए हैं हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की बातें करें। आप लोगों को क्या है कि क्यों करते हैं आप लोग ये की बात? क्या मिल रहा है आपको ये कर करके? क्या मिल रहा है आपको? धोखे दे रहे हैं शेख साहब, लोगों को, झूठ बोल रहे छोड़े हैं। ये धोखा दे रहे हैं। आप मुझे सच बता दें कि इस्म अहमद का मिस्दाक कौन है? हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और बरूजी तौर पे हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम है। क्या एक रसूल जिसका जिक्र है वो कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह अव्वल तौर पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और बरूजी तौर पे हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम है। यानी कि अव्वल मिस्दाक आप मानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? हाँ से सबको बिल्कुल। क्या मिर्जा बशीर साहब भी मानते हैं ये बात? मिर्जा बशीर भी सब मानते हैं। अगर उनकी तहरीर हो कि वो तो नहीं वही मानते। आपको उसकी ये कर दे, उसकी कर दे। आप ये बताए ना कि उन्होंने तो फारसी की नज़म पढ़ी, वो बताए पहले। हाँ वो बताइए। हाँ। या जो कुरान की बात आप नहीं सुनना चाहते? फारसी को छोड़े, जो मर्जी पढ़ दे, फारसी पढ़ दे, अरबी पढ़ दे, उर्दू पढ़ दे, हमें उससे क्या? ना फारसी पढ़ाए, पता लग जाएगा झूठा कौन है। देखने दीजिए ना। बहुत कहाँ चला गया वो? कहाँ चला गया फैजान? अब पीर साहब मैं दे रहा हूँ, मैं पीछे से निकाल रहा हूँ हवाला अपने ग्रुप से। अच्छा दे रहा हूँ। ठीक। जी देखेंगे इंशाल्लाह। इफ्तिखार साहब, बात यह है जी कि जज्बात से कोई फायदा नहीं है। देखिए मैं उनको मानता हूँ तो उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, बुरी बात है, गलत बात है ना, ये अच्छी बात है। देखिए आपके वालिद के खिलाफ मैं बातें करना शुरू करूँ मेरी सारी, तो अच्छी बात होगी। ये कोई शरीफ आदमियों का काम है? ये कोई शरीफ आदमियों का काम है कोई? आप लोगों का क्या तल्लुक है उनसे? आप नहीं मानते, ना माने, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह की बातें सारा वो कर रहा है, वो बस बसखियाँ उठा रहा है, वो गालियाँ निकाल, ये क्या है? ये आप लोग इंसान हैं कि नहीं है? आप लोग, आपकी मैं नहीं बात कर रहा, बाकी लोग जो है, आप तो शरीफ आदमी लग रहे हैं मुझे, अल्लाह के फजल। सुनिए ना बात। जी बात यह है कि बजाय आप कहें वो झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं झूठ की बात मैं तो कर रहा हूँ। हाँ चलो कर रहे, मेरी बात तो जी। आप झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहा है, झूठे पे लानत, ये वो, इसका कोई फायदा नहीं है, बल्कि उस चीज को देख लेते हैं कि वाकईतन ऐसा है। अगर नहीं है हम कहीं भाई। अच्छा चलो रोड तो बात, अब चलो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं ये आपसे पूछा आगे ये है नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप लोग एक किसी शख्स को नहीं मानते, आप ना माने, ठीक है ना, तो आप उसके खिलाफ बुरी बातें कर रहे हैं। इस तरह आपको क्या मिलता है इस बात करने से? क्या फायदा क्या है? आप ये मुझे बता दें। बुरी बात कही है या सही बात कही है, वो स्कैन आएगा तो मालूम हो जाएगा ना। फायदा नहीं, स्कैन की बात नहीं मैं कर रहा। मैं कहता हूँ एक शख्स है, ABC है, वो आप उसको नहीं मानते, आप सारा रात रोड में बैठ के 2 रात के 3 बजे बातें कर रहे हैं, उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, आपको मिलता क्या है? ये मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ बस। देखें
दावत जी। तबलीग का काम का हुक्म तो अल्लाह ने हमें दिया ये है। दावत है तबलीग है, ये दावत है तबलीग है। अब आप मेरी मुकम्मल बात सुनेंगे नहीं? आपने जो जी। सवाल किया मेरे मुकम्मल बात तो सुन लीजिए। अच्छा जी अब सुनाइए। पीर साहब वो क्या पान कहना वाला चाहता हूँ? पीर साहब वो पान वाला भी और मुसलमान वो की तो मैंने बता दिया आपको। तारीफी पहले मिर्जा पान साहब वाला ने तो जो मैंने बता लिखी है दिया, और जो फारसी नज़म पढ़ी पान वाला तो मैंने बता दिया वो तो। हाँ। वो फारसी नज़म वाला, ये तीनों मैंने भेज दिया। साहब शूटर साहब मेरी बात सुनिए, पान तो मुंह रब में रख के नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। अब जरा क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? किसने कहा ये नहीं पढ़ी जा सकती? नहीं, एक बात सुनिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं ना नहीं किसने पढ़ी कहा जा नहीं पढ़ी जा सकती। सकती? आप नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं इनकी बात आप कर रहा हूँ नबी ना, हैं। इनको इतराज है। नहीं, मैं अनबी हूँ, मैं ये तो कह रहा हूँ फिर कि ये कह रहा हूँ ना कि नहीं पढ़ी जा सकती। मैं एक बात कह रहा हूँ इनकी बात पे। वो तो अदल साहब ने मुंह में आगे रखा पान, तो मुझे दर्द की वजह से रखा। इनसे मैं ये पूछा, अब ये 60 फीटर पक्के पैरी खड़े हूँ, शराब पी के नमाज की इमामत की जा सकती है जिससे कुरान में आयत नाज़िल हो जाती है? और वो किसने पी थी 60 फीटर में बताऊंगा तो फिर तेरी कलाबाजियां लगेंगी उल्टी सी। ये होता है इल्मी मुनाजरा, इल्मी बात। इसलिए कह रहा था कि बात वो करो जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो। ये बकवास कराने की जरूरत क्या थी इसमें अब, और ये सब कुछ करने की? तो ये हकीकत है, ये हकीकत तो कुरान में आयत नाज़िल हुई है। ओ भाई जी, जब तुम मिर्जा नशे की हालत में हो तो साहब नमाज के करीब मत फारसी जाओ। पढ़न किसने मिर्जा पी साहब के खिलाफ बात ना करो, बताएं खबीस आदमी। इस आयत का जाने नज़ूल क्या है और किसने पी थी शराब, किसने ओ शेख साहब, मैंने कौन सी मिर्जा साहब के खिलाफ बात कर दी है? जब ऑर्डर ये जाहिल लोग बैठे हैं यहाँ क्या है? पर। तुम बड़े बड़े वो फराज आना का पता नहीं है। कौन सी बात की है मिर्जा साहब के अपने खिलाफ? माँ बाप का तुम्हें पता नहीं है, तुम दूसरों से बातें कर रहे हो। एक मिनट सारे चुप करो। इधर मेरी सारी बात तफसील बताओ इस अब आयत हालात की। है ना, अब हालात बताओ चल निकाल, अब कितनी हालात कोई निकाल, आई और काफिर गलत पड़ी थी? अब किसने? हालात मैं नाम निकाल, लूं? अब हालात मैं निकाल, नाम लूं? किसके बारे में ये जाने नज़ूल आयत? अब हालात निकाल, इमामत करने चले गए तुमने शराब पी निकाल के। दिया वाला हवाला अब हालात निकाल, निकाल, तू निकाल, तू निकाल वाला, तू निकालना, अब आप हालात शूटर को पता है किसने? तू निकाल, आप शूटर को पता है अब किसने? हालात निकालना, तू निकालना, तू निकाल, तू 12 निकाल। इमाम बाहर निकल आएंगे। अब हालात इसके 12 इमाम बाहर निकल आएंगे सारे अपना के पता सारे। नहीं है, दूसरों के अच्छा, खिलाफ एक बातें मिनट, कर अब रहे हो। वो बदतमीजी हवाला ना पढ़ते हैं ना करो, भाई। बदतमीजी ना भाई, एक करो। मिनट। क्यों भाई, वो निशान हवाला पर निकाल, खुलवाना चाहते हो? हवाला भाई, निकाल, हवाला हवाला पढ़ते निकाल। हैं, हवाला पढ़ते हैं, सुनो ना। पढ़ें जी, क्या हो गया? पढ़ें। हवाला पढ़ते हैं आराम से, तू तरह से कोई फायदा नहीं है। ये है सीरत अल मेहदी, सफ़ा नंबर है 644, हिस्सा स्वयं। अफ्तारी साहब पहले वो वाला पढ़ें कि जब तुम नशे की हालत में हो नमाज के करीब मत जाओ। शान नजूल बताएं और बताएं किसने शराब पी के इमामत की थी और किसने कुलिया और काफिर भाई, वो जो बात है नहीं हो रही वो है। गलत आप पड़ी शेख थी। साहब ऐसा मत कीजिए, हाफिज साहब, वो बात नहीं नहीं, हो ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ये मजबूरी है। और मैं कोई अपनी मन गढ़ंत कहानी नहीं बयान कर रहा हूँ, ना किसी पे सब्र नाउजुबिल्लाह कीजिए, तोहमत लगा रहा हूँ, सब्र ना मैं कीजिए। तोहमत लगा रहा हूँ, ना शातमियत कर रहा हूँ। तो पीर आप साहब, सब्र कीजिए थोड़ा सा, जरा मॉडरेटर मुझे उसको भी थोड़ी पढ़ देर लेते हैं, बनाएं। उसको वो भी जाके देखो शीए क्या क्या बातें करे आज़ सल्लम को और हज़रत अबू बकर और अरे हज़रत भाई, उस्मान एक मिनट, अभी बात को बगाड़ो नहीं ना, वो हवाला पढ़ने दीजिए। क्या हो गया? वो हवाला तो पढ़ने दीजिए। पढ़े। अच्छा, सीरत अल मेहदी, मैंने आपको ये सारा कुछ बताया। पीर साहब आप दूसरा वाला भी पढ़ेंगे जो मैं कह रहा हूँ, वो भी पढ़ेंगे, एक नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नजल नहीं पढ़ेंगे भाई, करेंगे। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ेंगे, सब्र तो कीजिए। ये है इस रिवायत का नंबर है 707। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुझसे बयान किया कि एक दफ़ा गर्मियों में मस्जिद मुबारक में मगरिब की नमाज पीर सराजुल हक साहब ने पढ़ाई। हुजूर भी इस नमाज में शामिल थे। तीसरी रकत में रुकू के बाद उन्होंने बजाय मशहूर दुआओं के हुजूर की एक फारसी नज़म पढ़ी जिसका ये मिसरा है। हाँ तो उन्होंने भाई, पढ़ी, हजूर ने एक तो जरूर मिनट, पढ़ी। एक मिनट, आज़म मसीह मौसूद ने अरे पढ़ी। भाई एक मिनट, अल्लाह के बंदो, एक मिनट, ओ अल्लाह के बंदो, एक मिनट। अब यहां पर बात यह है कि जो फारसी की नज़म तीसरी रकत में पढ़ाई है वो पीर सराजुल हक ने, मिर्जा जी ने नहीं। हाँ ठीक है, ये ठीक हो सकता है। हाँ चले, तो ये तो कह रहे मिर्जा साहब ने पढ़ी, ये तो झूठ बोल रहा था, ये तो कहता मिर्जा साहब ने फैजान पढ़ी। भाई, हाँ हाँ, देखिए आप बताए, बुलाए उनको, कहाँ है वो? फैजान भाई जी, भाग जाएगा। और मिर्जा साहब भी मौजूद थे ना। वजूद होने से क्या होता है? जरूर आप थे तो जरूर, आपका लेकिन मौलवी उन्होंने नमाज नहीं पढ़ा रहा हो, पढ़ी। पीछे खड़े हो, वो ओ भाई मौलवी नमाज में अगर एक बंदा थोड़ा सा गलती हो एक गया बंदे ने आपसे। गलती की है। हाँ चले, गलती हो गई, चले एक बंदे ने की है, तो मेरा कहते मिर्जा साहब ने पढ़ी चले, है। गलती झूठे हो गई। आदमी, अब ये लानती बताओ, आदमी, अब लानत पड़ी कि एक नहीं? मिनट, लानत मलामत मत कीजिए प्लीज।
नहीं तो पढ़ी इनको ना, झूठ बोल रहे थे। अच्छे यार मिर्जा अंदाज में साहब भी बात कीजिए, मौजूद थे क्या हो गया ना, तुम्हें? मिर्जा तो साहब क्या भी हुआ, मौजूद मिर्जा साहब मौजूद है तो क्या हुआ, पढ़ी तो उसने है ना। थे। नमाज में फारसी नज़म जिसने पढ़ी है उस पे लानत डालो। हजरत सल्लल्लाहु के साहब ने हजरत अबू बकर ने गाली निकाल दी, तो वो कहते गाली हजरत सल्लल्लाहु ने निकाली कि वो तो यार ये कौन सी निकाली। बात है, वो नमाज में फारसी अब की दूसरा नज़म नमाज में क्या नबी के सामने गाली निकाली कि क्या कौन सी हुआ? नमाज है? बताएं इमामत किसने की। लानती आदमी, झूठे आदमी, और लानती तो मिर्जा कादियानी था, लानती लानती हो तुम मिर्जा लोग सब, कादियानी था, लानती तो पीर साहब लानती मिर्जा कादियानी था। झूठे झूठे पढ़ के ना अल्लाह मिर्जा ने लानत कादियानी भेजी झूठा था, वो लानती है। अल्लाह ताला की लानत झूठे को, पीर अल्लाह साहब ताला की अब दूसरा लानत हवाला झूठे को, बयान करें और उसे बताएं शराब किसने पी और इमामत किसने की। अल्लाह ताला की एक ही लानत बंदे ने ओ शराब अब पी ये और एक फारसी ही वाली बंदे ने नज़म इमामत का तो की। बताओ, फारसी वाली नज़म का तो बताओ। बकवास कर रहा, झूठ बोल रहा था। और ये फारसी वाली नज़म हो, लानती। मिर्जा साहब भी मौजूद थे, उसको तो मना क्या नहीं हुआ, किया। तू तो कहता मिर्जा साहब ने पढ़ी है, झूठे ओ भाई नमाज में वो मौजूद था ना मिर्जा। झूठे झूठे, खुदा का खौफ करो कुछ, खुदा का खौफ करो कुछ। फारसी नज़म में आला दर्जे की जो लानती तुम लोग। आप शाम को इसे और बताएं। लानती तो हुआ जिसने नमाज में एक फारसी मिनट। घर में नज़म कोई पढ़ी है। दो अरे में भाई साला नहीं एक देता तुम्हें मिनट, कोई, तुम्हारी अरे औकात भाई क्या है? एक मिनट, ओ तुम्हारी भाई औकात शार्प शूटर को बताएं शराब भाइयों, एक किसने पी मिनट। इमामत किसने की, ये अरे बताएं। भाई चुप्पू यावी और आप थोड़ा काफिरून गलत किसने पढ़ी, भाईजान एक नाम एक लेके मिनट बताएं तो नाम। भाइयों एक मिनट, थोड़ा सा इस मसले को तो पूरा सुन लीजिए ना, पूरा तो सुन लीजिए, तुम लोगों को क्या हो जाता है। अब ये देखिए सब आगे। म्यूट लगाए, म्यूट। हाँ नहीं, ये सब भाई है, मैं नहीं चाहता, ये बच्चे नहीं है, मैं नहीं चाहता कैसा करें। अब आगे नहीं भी ये खुद सुनिए क्यों नहीं क्या म्यूट लिखा। लगाते? अब नहीं लगाता, मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा आगे सुनिए, आगे ये है कि बाबा, अब आगे ये है कि फारस ए खुदा, इसका तर्जुमा ये है। आगे उन्होंने कहा क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि खाकसार अर्ज करता है कि ये फारसी नज़म नहायत आले दर्जे की मुनाजात है जो रूहानियत से पुर है। आगे लिखा हुआ है मगर मारूफ मसला यह है कि नमाज में सिर्फ मनसून दुआएं बिलजहर पढ़नी चाहिए, बाकी दिल में पढ़नी चाहिए। पस अगर ये रिवायत दुरुस्त है तो हजरत साहब ने उस वक्त खास कैफियत के रंग में इस पर इतराज नहीं फरमाया होगा। आगे है, बस इतनी सी बात है। अब आगे चलते हैं। अब पीर साहब ये बताएं कि ये जो फारसी की नज़म पढ़ी गई है नमाज में, तो क्या कोई फारसी की नज़म या शायरी नमाज में जायज़ है? ये सब शराब पी के नमाज की इमामत करना जायज़ है। भाई एक मिनट ना भाई, और मुशरिक किया कलमात अदा करना, जिनकी तुम इबादत करते हो हम उसकी इबादत करते हैं, ये कहना जायज है। मुशरिकों को कहना कि जिसकी तुम इबादत करते हो हम भी इसी की इबादत करते हैं, एक एक चीज ये को हम कहना देख जायज रहे है। हैं, थोड़ा सा सब्र कीजिए। एक एक चीज शेख साहब आपको सब्र नहीं यार, आप एक एक चीज को देखेंगे। शेख साहब ऐसा मत कीजिए, कोई शेख ख्याल साहब नहीं होगा। शेख साहब थोड़ा अब ये देखें, जब वो ये बार पान बार वाला, पूछेगा फारसी की नज़म पढ़ना, पान अरे खाना, ठीक बाकी है ना तो मैं भाई, भी वही ठीक कहूंगा। है, उसको मैं भी बार उसके बार बाद यही हो अपील रही करूंगा, शराब पीना, नमाज की इमामत करना, कुफ्र का कलमात मुंह से भाई, अदा जब करना उसमें जायज है। जाएंगे तब आप सवाल कीजिए, फिलहाल हम इसको पूरा कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं। अब आगे देखते हैं, पान वाली बात देख लेते हैं। हाय वाह सारख बाबा। अच्छा, ये सीरत अल महदी, यहाँ पे लिखा पान रखकर कदम आराम हो गया। भाईजान पहले 60 से पाइप ऊपर से पढ़े, ऊपर है ना, ऊपर लिखा हुआ है ना, ऊपर ऊपर लिखा हुआ है ना। वो ना साहब को ये साहब कौन है? साहब को सख्त कांसी हुई। ये साहब कौन है जिसको सख्त कांसी हुई? ये आप स्टार्ट से लाइन से पढ़ें। स्टार्ट से पढ़ रहा हूं। साहब को सख्त कांसी हुई, ऐसी के दम न आता था, अलबत्ता मुंह में पान रखकर कदरे आराम मालूम होता था। पस उस वक्त आपने इस हालत में पान मुंह में रख के नमाज पढ़ी, ये मसीह माऊद ने, ये मसीह ताकि माऊद आराम से पढ़ सकें। हाँ, मसीह माऊद साहब ने। देखें बात तो सुनिए ना, अभी तो हमें मालूम नहीं पड़ा जब तक आप 605 नहीं देंगे कि ये कौन है, नहीं पता पड़ा। लेकिन जितनी बात इफ्तिकार ने की थी कि वो बीमार थे, दांत के दर्द की वजह से रखा था, इतनी बात तो साबित हो रही। लेकिन ये किसने रखा, वो 606 में नहीं बल्कि 605 में मालूम पड़ जाएगा। अगर है तो दे दीजिए।
تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ شخص کون ہے جس نے منہ میں رکھا ہوا تھا درد کی وجہ سے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اچھا پیر صاحب اجازت چلو، مغرب کا ٹائم ہو گیا ہمارے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام محترم، نماز پڑھ کے آئیے. جی جمرو صاحب، جمرو جی، جمرو جی بھی چلے گئے؟ نہیں جمرو ہیں. میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ کیا ہے؟ یہ آ رہی ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ تھوڑا سا آ رہی ہے پیر کیجیے. صاحب، جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ جمرو صاحب کون تھے؟ یہ انکل جمروز جو ہے نا، یہ بہت پرانے ہیں، بزرگ ہیں ہمارے. کچھ بات ہی نہیں کی، چلے گئے. ٹاک ماسٹر جی اوپر آئیے. ادھر ہی ہیں، نیچے ہیں، چلے نہیں گئے. ہاں جمرو جی ہیں. حفیظ صاحب، شدھ سیکر، آپ بھی اوپر آئیے. ٹروتھ جی اوپر آئیے. او ٹروتھ. جمرو صاحب بتائیے کیا کہنا ہے آپ نے؟ جمروز خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمروز خان حاضر ہو گیا آپ کی خدمت میں. آپ خیریت سے ہیں؟ جی دعائیں آپ کی. خوش رہیں. پروگرام میں آپ سنتا کون؟ رہتا ہوں یا جی نام پروگرام محمدی سنتا ہیں یا؟ یا یہ بعد میں بتاتا ہوں بچا لو. میں پروگرام سنتا رہتا ہوں. پرابلم یہ ہو جاتا ہے ہمارے درمیان کہ جب ہم تھوڑا سا شیشہ دکھاتے ہیں تو آپ گرمی میں آ جاتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جن میں ذرا بھی کوئی عزت یا احترام، شائستگی، اخلاق نظر نہیں آتا. جی مائنڈ نہ کیجیے یار، میری ذاتی اناد مخالفت کسی سے نہ ہے، یقین کیجیے. یہ گزارش کر رہا ہوں. اب میں بھی حوالہ دینا چاہتا تھا وہ جو فارسی میں نظر پڑی تھی اس کا، لیکن اس دوسرے وہ بچوں نے دے دیا آپ کو. اب میری ضرورت نہ ہے، لیکن میری گزارش ہے پیار سے. آپ میوٹ ہو گئے. جمرو صاحب میں نے تو اگر کوئی ایسی غلط بات کی ہے تو آپ بتائیے، میں نے ویسے کی نہیں. کون سی بات میں نے کی ہے جس پہ آپ کو شکایت ہے تو بتائیے. جمرو صاحب جی اب میری کون آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ آ رہی رہی ہے، میری؟ لیکن آپ کو جو شکایت ہے وہ کیا ہے؟ میں نے کون سی بات؟ احترام ہے، ٹو دی پوائنٹ کی ہے. لیے
कोई ऐसा फिक्रा मुंह से कहा जो आपको नागवार गुजरे या सामीन को या नाजरीन को, ये बात है ना। यार ये अब मेरी भी आप, अब मैं अपने आप को अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह मुझे मेरी उम्र को रिवर्स करा दे, मेरी उम्र 35 कर दे 2 मिनट के लिए। हाँ जी बताइए, अब मैं 35 का हो गया और 32 का हो गया, मैं वो ऐसे ही बात करूँगा, ऐसी उदास से जिस तरह आप कहेंगे, क्योंकि मैं भी किसी ज़माना में ऑलराउंडर हुआ करता था, अब भी हूँ, लेकिन डरता हूँ खुदा से हर वक्त मसले पे या जो भी दीनी काम या फला बबूदी को ऐसे करता रहा। तो फरमाइए, आपने क्या कुछ नहीं कहा? मैंने अगर कुछ कहा हो तो आप यहाँ लोग बैठे उनसे पूछ लीजिए, हफीज साहब यार बैठे उनसे पूछ अल्लाह लीजिए। की कसम, जहाँ 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 मैं वलाग पा जाता हूँ, दूसरे पाकिस्तानी है, सच्ची बात है, वहीं जाना पड़ता। ओ पता क्या कहते हैं,